Hello students, this is part 2 of your sectors of Indian economy. Sectors of Indian economy part 1 before your summer vacation, that is before June 1st. I had already completed, I had given you that part 1. Once you will recapitulate it, in recapitulations I am writing this concept we have already covered, that is what is primary sector or primary activities, what is secondary sector or secondary activities, what is tertiary sector or tertiary activities, what do you mean by final good, what do you mean by intermediate good, and along with that also we have covered what do you mean by GDP. Is it? So these many things we have covered in our first part of the video. I hope all of you have means already gone through that video. You have learned the concept. I have already requested you, based on that you should make the notes. Once you should go through the books. I don't know how far you have gone through that one. If at all you have not gone through this one, before seeing this video I would like that you should first go through that video and then you should go it, so that you can able to follow it up. Fine. Now what I have completed, I have told that we have completed these many things. Okay. Now what do you mean by primary sector? That I have told, that is agriculture allied sector also, and this sector is generally related to the nature, where from nature it is collecting the inputs, then carrying on the production, like agriculture, mining, quarrying, or poultry. All these are the primary sector activities, and the activities which is carried, these primary activities are carried on a sector, that is called the primary sector. Then the secondary one is the manufacturing sector or industrial sector, where they are using the primary sector output as an input and carry on the productions, like cotton industry and textile industry, isn't it? In the cotton industry, textile industry is using the cotton which is produced in the your primary sector, that is from the agriculture, and your sugar industry, which is using the sugar cane as the input, which is produced by the primary sector and producing the sugar. Okay. The steel industry, which is using the iron ore as a input, which is extracted from the primary sector and making the steel and steel alumina. Is it clear? So that is called the secondary sector, and tertiary sector is related with all type of the services, and whatever the primary, secondary and tertiary sector, whatever goods and services produced, what goods, final goods and services they are produced, that is included in the GDP. Fine. And here I have given the stress that what do you mean by, already I have told what is GDP. GDP is the sum of value of all final goods and services produced by all the three sectors, that is primary, secondary and tertiary sector, in an accounting year, that is GDP. So while calculating the GDP, I have given the stress on the word final good. All the goods are not considered as the final good. Only the goods which is directly satisfy the needs of the consumptions, or for the investment it is used directly, that is called the final good. But few goods which is using during the as a raw material during the process of production, that is called the intermediate goods. In this connection I had given you the example, from the wheat we are producing the flour, then from the flour we are making the cake. So cake is the final good as it is directly used for the consumptions. Okay. But here wheat and flour, these are the intermediate goods, because these goods are using as a raw material. Fine. So in this connection, three difference I had given in my previous video. Please go through that one. Now we will be talking about why in recent era the importance of the tertiary sector increasing, or what is the paradigm, what is that called, how the in the recent era there is the, what are the historical changes in three sectors in recent era, that is called paradigm shifting. Paradigm shifting means how in recent year the three different sector have changes their role. If you will consider in 1950, then you will find during 1950 agriculture was playing vital role, and
In this period, agriculture was contributing more towards the GDP and so also towards the employment compared to another two sector, that is industry and employment. Industry and service sector. But slowly and gradually, if you will see the last decades data, then in this data you will find the contribution of tertiary sector and secondary sector has increased compared to your primary sector towards the GDP. But in employment, the extent that should increase, that is not increasing. What do you mean by that? मेरा कहने का मतलब है कि अगर 1950 से हम लोग देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनिशियली 1950 की एरा में जब जस्ट कंट्री मतलब फ्रीडम हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था, तब एग्रीकल्चर का ज़्यादा रोल था दोनों में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी और कंट्री की इनकम में कंट्रीब्यूट करने के भी. कंट्री का इनकम क्या बोलते हैं? जीडीपी. मतलब जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा था प्राइमरी सेक्टर का और एम्प्लॉयमेंट में भी ज़्यादा रोल अदा करता था. लेकिन जब तुम्हारे धीरे धीरे अगर लास्ट डिकेड्स का लास्ट 10 साल के हम देखेंगे तो या धीरे धीरे हम 1960 फिर 70s फिर 80s फिर 90s में देखेंगे, धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द जीडीपी वो घटता गया है. उसी जगह पे टर्शियरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी बढ़ता गया है. इवन इंडस्ट्री का भी बढ़ा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना टर्शियरी सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है. लेकिन जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात आई तभी भी 1950 में भी एग्रीकल्चर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था. अभी भी एग्रीकल्चर लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. मतलब मोर देन 50% ऑफ द पीपल टिल नाउ अर्निंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर. बट स्टिल देन एग्रीकल्चर इतना लोगों को एम्प्लॉय करते हुए भी इसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी कम है. इसका मतलब क्या हुआ? लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में लेकिन ज़्यादा जितना प्रोडक्टिविटी करना चाहिए, जितना इनकम जनरेट करना चाहिए उतना इनकम जनरेट नहीं करता है. ठीक है, जितना इनकम जनरेट करना चाहिए उतना जनरेट इनकम नहीं करता. उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. अभी बात आती है, पहले हम पढ़ेंगे कि टर्शियरी सेक्टर इतना ज़्यादा ये 10 साल में क्यों इम्पोर्टेंस हो गया. वाई टर्शियरी सेक्टर एक्सपांडेड इन लास्ट फ्यू डिकेड्स. कैसे टर्शियरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ कैसे एक्सपैंड कर गया कंपेयर टू योर इंडस्ट्रियल एंड योर प्राइमरी सेक्टर. ये रीज़न, ये कभी कभी 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो इसको पॉइंट वाइज लिखना है बच्चे. तो प्लीज़ अच्छे से सुनो जो मैं बोल रही हूँ. फर्स्ट, द आंसर इज व्हेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, primary means the agricultural based and secondary means the industrial based. So when those sector will expand, then obviously they need more support service, and you know that the support service is provided by the tertiary sector. Means the primary sector or industrial sector expand करता है slowly and gradually. Obviously expand तो किया है 1950 से अभी तक expand किया है, लेकिन जितना expand करना चाहिए उतना नहीं किया है. एनीवे लेकिन धीरे धीरे जब एक्सपैंड करता है तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा सपोर्ट सर्विस ज़रूरत करता है. सपोर्ट सर्विस जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, इरिगेशंस, बैंकिंग, लोन चाहिए उनको, वेयर हाउस चाहिए जहाँ सामान रखा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए. तो ये सारा सर्विस एक्सपैंड होती है. तो इसका मतलब सर्विस एक्सपैंड होती है, मतलब टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ गई. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन. व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? फर्स्ट रीजन व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज एक्सपैंडिंग इन रिसेंट एरा. And what is the historical changes? Already I have told you. Historical changes is that contribution of the primary and secondary sector in GDP reduced, but the contribution of tertiary sector in GDP increased. Now the question is why the contribution of tertiary sector increased, or why the tertiary sector expanded in recent year. In recent year it expanded due to many reasons. The first reason I have told that the first reason is that with expansion of the primary and secondary sector, they need more support service, that is transportation, communication, irrigation, storage, banking, etc.
insurance, they need. As a result, tertiary sector expanded. This is the one reason. Second, 1950 में हमारा कंट्री जितना डेवलप था, अभी उससे कई गुना ज़्यादा डेवलप्ड है. इसका मतलब कोई भी कंट्री बेसिकली जब धीरे 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 डेवलप होता जाता है, उसको बहुत सारा बेसिक सर्विस की ज़रूरत होता है. बेसिक सर्विस जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मीन्स हॉस्पिटल, एजुकेशंस, दैट इज स्कूल, कॉलेज एंड योर यूनिवर्सिटीज़, पुलिस, कोर्ट, बैंकिंग, ये सारी सर्विस की धीरे धीरे, रेस्टोरेंट, ये सारा सर्विस की ज़रूरत होता है. IT सेक्टर, सबकी ज़रूरत होती है. दिस आर द बेसिक सर्विस. सो व्हेन ए कंट्री इज़ डेवलपिंग, विद द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट they need various basic service. Okay, and this basic service I have told. What are those basic? School, college, hospital, court, your IT sectors, IT services. These are the basic service which expand. आज जब बेसिक सर्विस एक्सपेंड हो जाती है तो obviously they belong to tertiary sector, so tertiary sector expand. This is the second reason. Now third reason अच्छे से समझना. जैसे कंट्री डेवलप करेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगी, और लोगों का जैसे ही इनकम बढ़ती है, लोग बहुत सारा लग्जरी और कंफर्टेबल थिंग्स की आदत डाल देते हैं. जैसे ईटिंग आउटसाइड, तो होटल का सर्विस बढ़ जाएगा. विजिटिंग टू द मॉल, शॉपिंग, वो बढ़ जाएगा. चारों तरफ घूमते हैं, टूरिज्म सेक्टर बढ़ जाएगी. अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा. सो विथ राइज इन इनकम, डिमांड ऑफ द पीपल फॉर डिफरेंट लग्जरी एंड द कंफर्टेबल थिंग्स इंक्रीज, एंड दैट लीड टू एक्सपेंशन ऑफ वेरियस सर्विसेज. लाइक आई हैव टोल्ड, पीपल हैबिट ऑफ ईटिंग आउटसाइड, मेकिंग परचेज फ्रॉम द मॉल, or visiting different places, that gives to different type of the services. They don't want to put their children in a government school, they want to teach them in the private school, they want to go to the private hospital, private dispensary, so that give rise to different type of the services. This is the third factor. Now fourth one is the very important, is the last one. वो क्या है? वो है कि जैसे लोगों का खाली लोगों का इनकम बढ़ता है, कंट्री भी डेवलप्ड होती है. कंट्री डेवलप होने के साथ साथ एक अलग सर्विस, जो IT सर्विस है, ये खास करके ये 10 साल में जब ग्लोबलाइजेशन आ गया, ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ हमको IT एनेबल्ड सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड हुई. जैसे BPO चलाना, कॉल सेंटर चलाना, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, सैटेलाइट सर्विसेज, बेस्ड ऑन सैटेलाइट सर्विसेज, ये सब की बहुत ज़रूरत हुई. So that means in recent era, the IT enabled services that increase, and that playing very vital role for the expansion of the tertiary sector. Is that clear? तो 4 फैक्टर में बताई जिसके लिए टर्शरी सेक्टर रिसेंट ईयर्स में बढ़ गए. ठीक, अब आते हैं, बात होती है क्यों प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन GDP में नहीं बढ़ा. एम्प्लॉयमेंट में तो अभी भी 50% से ज़्यादा लोगों को काम दिलाता है, लेकिन क्यों उसकी कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द GDP नहीं बढ़ा? अगर हम डाटा देखेंगे, तुम्हारे बुक में ही डाटा दिया हुआ है कि रिसेंट ईयर्स में जो इंडस्ट्री है उसकी GDP में कंट्रीब्यूशन, मतलब उसकी आउटपुट जो प्रोडक्शंस है, वही प्रोडक्शन ना GDP में इंक्लूड होता है, तो वो 8 टाइम्स बढ़ गया है रिसेंट ईयर्स में. जबकि एम्प्लॉयमेंट खाली वो 2.5% कंट्रीब्यूट करता है. मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द GDP बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है? 8 टाइम्स. लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? सिर्फ 2.5 टाइम्स मोर. फाइन. अगर टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है उसको भी देखेंगे तो उसका भी कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा है? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 11 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द GDP. मतलब आउटपुट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया है रिसेंट ईयर्स में, 11 टाइम्स बढ़ गया. लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन जो है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट लेस दैन 1%. मतलब एम्प्लॉयमेंट में जितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, लेकिन GDP में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. फाइन. और अगर हम प्राइमरी सेक्टर को देखेंगे तो मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर वर्किंग, लेकिन
उसकी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम है कंपेयर टू इंडस्ट्री एंड योर टर्शियरी सेक्टर, सबसे कम वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो बात आती है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, क्या क्या कारण है, क्यों हम प्राइमरी सेक्टर में इस तरह का चीज़ हम देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जहाँ 5 आदमी की ज़रूरत होता है वहाँ 10 आदमी काम करते हैं। इसका मतलब 10 आदमी को काम तो मिल गया, लेकिन ज़रूरत कितना था, 5 आदमी की, लेकिन काम कितना कर रहे हैं, 10 आदमी। इसका मतलब अगर 10 आदमी, 5 आदमी काम करते हुए अगर 1 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहा है तो 10 आदमी काम करते हुए भी वही 1 क्विंटल ही प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब जीडीपी बढ़ा नहीं, जो 1 क्विंटल था वही 1 क्विंटल है, बढ़ा नहीं। 5 आदमी भी 1 क्विंटल जनरेट करते थे मतलब इनकम जो प्रोडक्शंस, और 10 आदमी भी वही 1 क्विंटल ही जनरेट करते हैं। इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा आदमी काम कर रहे हैं जो दिखते तो है काम करने जैसे, लेकिन कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करते, जिसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, who seems to be working but they are not contributing anything. If you remove these extra people from the agriculture, then the total productivity will not affected. समझ में आ गया? This is called underemployment. Underemployment means people are working less than their potentialities. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गई, मान लो 1 क्विंटल को, 1 क्विंटल मतलब 100 kg, 5 आदमी काम करते तो एक आदमी का कंट्रीब्यूशन 20 kg होता, ठीक है। जब 10 आदमी काम कर रहे हैं इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, वही 5 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे, कंट्रीब्यूशन घट गया, एक आदमी 10 kg प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब हर आदमी जिसका 20 kg प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी है वो 10 kg प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब लेस देन देयर पोटेंशियल काम किया। दैट इज कॉल्ड व्हाट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट is the, sorry students, 1 minute please wait, let me to close the door. Yes, so what I mean to say that when the people are working less than their potential, that is called underemployment. And disguised unemployment is an example of underemployment. What do you mean by disguised unemployment then? When more than required number of the people working in a field, they are called disguised unemployment. 5 required but 10 are working, means more than required number of the people are working in a field. That is called disguised unemployment. And if you will remove this extra people from our field, then total productivity will not adversely that will not adversely affected. Fine, that is called your, excuse me, that is called your disguised unemployment. Fine. So in agriculture mainly the concept of the disguised unemployment visible in more percentage. It is not like that in other sector it is not there, other sector also there, but mainly in agricultural sector we are seeing this type of the disguised unemployment. And agricultural sector you are also seeing the seasonal unemployment. Seasonal unemployment is also a type of underemployment. Disguised unemployment is also a type of underemployment. Seasonal unemployment मतलब देखो बारिश के टाइम में है तो काम करते हैं, बारिश के टाइम में बारिश हो रहा है तो जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, रेनी सीजन में ओनली दे आर वर्किंग, और महीने में 4 मतलब 1 साल में 4 महीना काम किए, 8 महीना बैठ गए, तो कैपेसिटी तो 1 साल की काम करने की है, लेकिन वो लोग काम कितना काम कर रहे हैं, 4 महीने और 8 महीने बैठ गए, तो ये भी तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट. And disguised unemployment is also a type of underemployment. Fine. So you have got the concept of the seasonal unemployment also, you have got the concept of the disguised unemployment also, you have got the concept of the underemployment also, and it is mainly related to the agricultural sector. ठीक है. Question may come, what is the main activity of the India? Main activity of India is the agriculture. But mainly thing is that which sector is contributing most towards the employment? Primary sector is contributing more towards the employment because more than 50% workers are working. Which sector is contributing more towards the GDP? Tertiary sector is contributing more towards the GDP. Now the question is, why there is more unemployment in our country?
how can this disguised unemployment, seasonal unemployment can be taken care of? How more employment opportunity can be created in different sector? How it can be created in different sector? Okay, just a minute. हिस्टोरिकल चेंजेस वी हैव रेड इन हिस्टोरिकल चेंजेस क्या क्या हम लोग पढ़े कि कैसे 8 टाइम इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बढ़ा, 11 टाइम टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा, लेकिन जहाँ तक तुम्हारी ये आई क्या एम्प्लॉयमेंट आई तो वहाँ 2.5% टाइम तुम्हारा इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रहा है और लेस देन 1% टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है. और अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पहले 78 मोर देन 70% पीपल 1950s में काम कर रहे थे, अभी मोर देन 50% ऑफ पीपल काम कर रहे हैं. मतलब तभी 70% प्राइमरी में काम कर रहे थे, अभी 50%. लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करेंगे घटा तो है एम्प्लॉयमेंट मतलब डिपेंडेंट ऑफ द पीपल ओवर द एग्रीकल्चर, लेकिन जितना घटना चाहिए उतना नहीं घटा है. कोई भी कंट्री तभी डेवलप्ड माना जाता है जब कंट्री की पीपल ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं. आज जैसे चाइना क्यों उसको हम ज़्यादा डेवलप मारते हैं इंडिया में, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं. यूएसए में टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन अभी भी इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं. तो इट इज़ नॉट ए साइन ऑफ डेवलपमेंट. जब कंट्री डेवलप करता जाता है तो पहले उसकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करेंगे, फिर एट लास्ट यूएस जैसे अभी सबसे डेवलप्ड कंट्री है तो उसकी फाइनली उसकी टर्शियरी सेक्टर में लोग ज़्यादा काम करेंगे. ठीक है ना. इसलिए हमारा कंट्री की अभी ज़रूरत है कि वो टर्शियरी सेक्टर को ज़्यादा डेवलप करे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा डेवलप करे. फाइन. तो अभी क्वेश्चन आता है वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉइंग. As already I have told you, now also data is showing most of the people are working in our country in primary sector, that is in agriculture. जहाँ हम where we are seeing the problem of the underemployment in the form of the disguise and seasonal unemployment, isn't it? Now how to create then more employment opportunity? तुम्हारे बुक में एक स्टोरी दिया हुआ है किसका, लक्ष्मी मैं शॉर्टकट में स्टोरी बोलना चाहती हूँ, आप गो थ्रू करना अच्छे से. उसकी 2 हेक्टर लैंड थी लक्ष्मी की, अनइरिगेटेड लैंड है. ठीक है. तो लक्ष्मी की जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लक्ष्मी 2 मेंबर की ज़रूरत है वहाँ, लेकिन 5 के 5 लोग उसी में काम कर रहे हैं. ठीक है. तो उनके जो एफर्ट है सबकी एफर्ट डिवाइड हो जा रहा है. तो हर की एफर्ट जितना करना चाहिए उतना नहीं, क्योंकि 2 की ज़रूरत था, कितना काम करे 5, तो इसका मतलब जितना प्रोड्यूस हो रहा है 5 के अंदर डिवाइड हो जाने से इंडिविजुअल एफर्ट घट गया, इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी टुवर्ड्स द जीडीपी घट गया. ठीक है ना. तो ये एक अनइरिगेटेड लैंड है, इसका मतलब कब काम कर रहा होगा लक्ष्मी, खाली बारिश के महीने में. ठीक है. उसके बाद तो यहाँ जो लोग थे उसके घर का 2 आदमी काम करना चाहिए, लेकिन 5 आदमी काम कर रहे हैं, मतलब 3 आदमी जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो हो गया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, लेस देन देयर पोटेंशियलिटीज देयर. फिर सुखराम बोल के एक आदमी आता है जो ज़मींदार है, उसको ज़रूरत पड़ता है लेबर की उसकी फील्ड में. सो लक्ष्मी की घर से वो 3 लेबर को हायर करता है. तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 3 लोग थे वो चले गए कहाँ, सुखराम की फील्ड में. तो लक्ष्मी को अभी जो 2 लक्ष्मी की ज़रूरत है वही 2 लोग ही काम कर रहे हैं, वो भी खाली उस सीज़न में जब बारिश हो रही है उस सीज़न में. लेकिन 3 आदमी चले गए सुखराम की फील्ड में काम करने के लिए, वहाँ से उनको इनकम मिला, एक्स्ट्रा इनकम मिला. इसका मतलब अगर हम एग्रीकल्चर को ओवर पॉपुलेटेड नहीं करके वहाँ से अगर हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी, जैसे लक्ष्मी की इनकम बढ़ गई. ठीक है ना. तो टुवर्ड्स द जीडीपी भी बढ़ जाएगी, हमारा इनकम जीडीपी का पार्ट है, तो टुवर्ड्स द जीडीपी भी लक्ष्मी लोगों ने ज़्यादा क्या किए, कंट्रीब्यूट किए. उसके बाद आया अगर मान लो इसके बाद ये तो बात हो गई लक्ष्मी की. ठीक. लेकिन लक्ष्मी क्या कर रही थी, पूरा होल डे अपनी फील्ड में काम करती थी, होल सीज़न वो दिखाती थी काम कर रहे, लेकिन सारा सीज़न में तो लक्ष्मी को काम नहीं मिलता था क्योंकि अनइरिगेटेड लैंड है. एक पर अगर गवर्नमेंट लक्ष्मी को क्रेडिट मिल जाता फॉर्मल सोर्सेस से, मतलब लोकल बैंक अगर लक्ष्मी को अगर ज़मींदार लोगों से लेगी लोन तो फिर तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा. अगर इसी जगह पे गवर्नमेंट आता और मान लो गवर्नमेंट कोई डैम ये कर देता या ट्यूबवेल करता तो वहाँ से लक्ष्मी हमारा फील्ड में इरिगेशन कर पाती, और लक्ष्मी को कुछ लोन देता तो लक्ष्मी फर्टिलाइज़र सीड्स जो भी ज़रूरत है या
इक्विपमेंट जो भी ज़रूरत है एग्रीकल्चर के लिए, या जो इरिगेट कर पाती है अपनी ज़मीन को पंप लगा के, इससे क्या होता, लक्ष्मी का इनकम और बढ़ जाता है ना। क्वेश्चन है कि हम कैसे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो मैं लक्ष्मी का आपको एग्जांपल दी कि कैसे हम, व्हाट आर द वेज। पहले बाय इम्प्रूविंग द इरिगेशन फैसिलिटीज़, इफ गवर्नमेंट विल कम एंड गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्ट मोर डैम, more canal, more tube-well, then the people in rural area, they can irrigate their land, and throughout the year they can able to get their income from their field. In that case, more employment can be generated. This is the one thing. Second, by investing more on transportation. Government should invest more on transportation so many people can get their income, job in transportation field. और like लक्ष्मी अगर ज़्यादा मान लो प्रोड्यूस की, गवर्नमेंट से लोन ली और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, अपना घर के लिए खाने के लिए रखेगी, बाकी सब क्या करेगी, मार्केट में सेल करेगी। तो मार्केट की सेल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सही है ना। इस जगह पे अगर गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट करके रोड वगैरह बनाया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए भी लोगों को लोन दिया, तो लोग कुछ अपना गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा रोड है तो लक्ष्मी की जैसा बहुत सारा फार्मर्स है जिनके सामान लेके मार्केट में बेचेंगे, तो इससे क्या होगा, फिर इनकम जनरेट हो जाएगा। सो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इन्वेस्ट ऑन द मोर ट्रांसपोर्टेशन। और क्या, गवर्नमेंट को क्रेडिट फैसिलिटीज़ देना चाहिए, खाली एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे छोटे छोटे, जैसे आज अभी तुम देखे हो कोविड-19 में बहुत जगह पे हमारी जीडीपी जैसे घट जा रही है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या किया, ये जो 20 लाख करोड़ की जो तुम्हारा पैकेज किया, उसमें क्या किया, लोन देने का ज़्यादा प्रोविज़न किया है। किससे, एमएसएमई सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को, एग्रीकल्चरल सेक्टर को, मनरेगा में, ये सब में तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है जिससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट है। ये भी एक वे है। तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, थर्ड तुम्हारा वे हुआ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द क्रेडिट एट चीपर रेट थ्रू द लोकल बैंक्स टू द पीपल, both to the agriculturist also and to the small industrialist also. लाइक पापड़ फैक्ट्री खुल सकता है, दाल मतलब जो बेसन बनाने की फैक्ट्री, दाल क्रशिंग फैक्ट्री, शुगर कल क्रशिंग फैक्ट्री दे कैन मेक, आचार इंडस्ट्री दे कैन मेक। सो इस सब को छोटा छोटा करके स्मॉल कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन बी डेवलप, है ना। सो मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैन बी क्रिएटेड अलॉन्ग विद देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी। और क्या, ओपनिंग अप मोर कोल्ड स्टोरेज, जैसे मैं बोली अगर ज़्यादा प्रोडक्शंस होगा तो क्या होगा, उनकी डिमांड ट्रांसपोर्टेशन में खाली नहीं बढ़ेगी, वो कोल्ड स्टोर में भी तो रखना चाहेंगे वो लोग। तो गवर्नमेंट शुड ओपन मोर कोल्ड स्टोरेज, देयर ऑल्सो मोर पीपल कैन एम्प्लॉयड, सो दैट कैन ऑल्सो बी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और अब आपको पता है कि हमारा कंट्री में 2/3 स्टूडेंट्स खाली स्कूल जाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब और बच्चे को स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जब अपॉर्चुनिटीज़ है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उस जगह पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ज़्यादा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी अगर गवर्नमेंट खोलेगा तो भी बहुत ज़्यादा टीचर्स, लेक्चरर्स और सारा फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय और डिफरेंट पीपल विच इज रिलेटेड टू द एजुकेशन फील्ड, दे कैन ऑल्सो गेट देयर जॉब। अलॉन्ग विद दैट एजुकेशन लेवल ऑफ आवर कंट्री विल ऑल्सो increase. That means there is scope. Data shows that there is 20 lakhs job can be created in the field of the educations by establishing more school, college and university. Okay, what is the another way? Another way is that to improve the health care. हमारा कंट्री में बहुत सारा हेल्थ केयर सिस्टम में भी अगर इम्प्रूवमेंट होगा, ज़्यादा हॉस्पिटल, ज़्यादा तुम्हारा डिस्पेंसरी, ज़्यादा ये सब भी खोलेगी तो भी ऑटोमेटिकली तुम्हारे ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, नर्सेस की ज़रूरत होगी, कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, और भी बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होगी. सो दैट कैन ऑल्सो भी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. सो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो पुट द एफर्ट फॉर इन द हेल्थ सेक्टर टू open more hospital and different type of the health oriented activities so that the more doctors, nurses, health workers can get their employment. Fine. What is the another way? Tourism. ये सबसे ज़्यादा स्कोप है टूरिज्म सेक्टर्स में. Data says that the 35 lakhs job can be created in tourism sector. So government should put the efforts here also in different state. What are the different visiting place there, the वहाँ infrastructural facilities करना चाहिए, होटल, रेस्टोरेंट्स ये सब खोलना चाहिए. अच्छा रहने की जगह, लॉज की जगह, जिससे ज़्यादा लोगों को क्या होगा, रहने की सुविधा मिलेगी, तो ज़्यादा लोगों को काम करने की सुविधा मिलेगी. होटल वगैरह खुलेगा तो वहाँ भी ज़्यादा जॉब
क्रिएट हो सकता है। तो कितना 35 lakhs जॉब कैन बी क्रिएटेड इन टूरिज्म सेक्टर। और क्या, जैसे मैं बोली मनरेगा, मनरेगा इसके उसके ऊपर क्वेश्चन 5 मार्क का भी, कभी कभी 3 मार्क का भी आता है, 5 मार्क का भी आता है। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इन्वेस्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम लाइक मनरेगा टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अभी जैसे जो 20 लाख की पैकेज है उसमें मनरेगा में जहाँ 100 डेज़ की वर्क था, मनरेगा क्या है, या 3 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर मैं बोल देती हूँ। मनरेगा है राइट टू वर्क के हिसाब से 2005 में मनरेगा आया था, ठीक है। मनरेगा हुआ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। और 2005 में राइट टू वर्क के अंडर ये इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंटेड किया गया, जहाँ गवर्नमेंट 100 डेज एश्योर्ड वर्क ऑन जो फिजिकली एबल्ड है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन फिजिकली एबल्ड है, उनको 100 डेज़ की एश्योर्ड वर्क गवर्नमेंट देता था। और अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाता था, मान लो 70 दिन का काम दिया और 30 दिन का काम नहीं दिया, तो जितना दिन काम नहीं दे पाता था उसके बदले अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देता था, मतलब उनके पैसे उनके खाते में ही जाता था। अभी तो ये 20 लाख के पैकेज में 200 डेज़ का अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट कि मनरेगा में जहाँ 100 डेज़ की वर्क था और 200 डेज़ एक्स्ट्रा होना चाहिए लोगों को। अभी देखो मनरेगा का जो वेज मिलता था 150, अभी तो उसको बढ़ा के 210 या 300 के आसपास कर दिया है वेज रेट। तो इससे भी मोर एम्प्लॉयमेंट can be generated. So this is also another question, 5 mark question, how more employment opportunity can be created. ठीक है, आज हम लोग मेनली 2 क्वेश्चन हम लोग कवर किए, दैट इज 3 क्वेश्चंस। व्हाट आर द हिस्टोरिकल चेंजेस इन डिफरेंट सेक्टर, जिसमें एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का दोनों के बारे में आप बताओगे कैसे 3 सेक्टर का चेंजेस आया कंट्रीब्यूशन में। सेकंड, क्यों रिसेंट ईयर में टर्शियरी सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया, उसका 4 रीज़न में आपको बताई थी। थर्ड, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री। इसी को डिवाइड भी किया जा सकता है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन अर्बन एरिया। जितना मैं बताई पॉइंट्स उसको सेग्रीगेट करके आप 2 हिस्सा कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्रेडिट देना, इरिगेशन, जो इरिगेशन के लिए कैनल बनाना, ट्यूबवेल बनाना, ट्रांसपोर्टेशन बनाना, स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाना, ये सब रूरल एरिया में हो जाएगा। अर्बन एरिया में ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, हेल्थ, और रूरल एरिया में मनरेगा भी आ जाएगा, है ना, मनरेगा अर्बन में भी आएगा, ठीक है ना। और क्रेडिट टू द इंडस्ट्रीज़, ये सब भी अर्बन सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो up to this we have completed, students. This is the part 2 of the video. Part 2, part 1 already I have completed. Starting with the third part, what are the another way to divide the economy, how on the basis of the employment and basis of ownership of the factors of productions, how we can divide the economy. So I think the third video will be the last video, okay. Third video will be the last video. I will try, if it will be not completed then I will take one more video, fine. So please students, go through it and also go through your book. Is that clear? Bye bye for today.